ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ, ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਅਰਥ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਸੂਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨਿਰਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह जी दे कोल पुछिए कि सुख जीवन दे विच किस तरह आउंदा है। पातशाह जी कहिंदे ने पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन भाओ सागर तरिया। जिस मनुख ने अपने हिरदे विच परमात्मा नूं आराध्या है, गोबिंद दा आराधन कीता, गोबिंद दे गुण गाए, उसने ही ये डर भरिया संसार समुंदर पार किया है। बाकी ये संसार समुंदर दे विच डुब गए जिन्हां ने मनुखां दा आसरा लिया, जिन्हां ने सुख दी खातर मनुखां दे कोल जाके झोलियां अड्डियां। वो संसार समुंदर दे विच गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहंदे डुब जांदे ने। क्यों? क्योंकि जिन्हां दे पास असी जिन्हां दे कोल असी गए वो आप दुखी सन, उन्हां ने सानू सुख कित्थों देना सी। गुर हरबिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज आवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस घटै। गुरु तो बिना परमात्मा तो बिना कोई होर धिर, किसे दा दुख पीड़ कट नहीं सकदी। प्रभ तज आवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस घटै। परमात्मा दा आसरा छड्ड के जे किसे होर दा सेवक बणीए तां इह काम विच इज्जत वडियाई शोभा घट जांदी है। इहदे विच वडियाई नहीं। साडे गुरु दे कोल किस चीज़ दी कमी है? सब कुछ है, सानू मंगण दी जाच नहीं आई। क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस दे हिंसो पावे सब कुछ है। असी गए उन्हां कोल जिहड़े आप दुखी सी, जिन्हां दे कोल कुछ है ही नहीं। जिहड़े आप भुखे ने, जिहड़े आप नंगे ने, उन्हां दे सेवक कित्थों रज के खा लैणगे। पातशाह जी दे पावन बचन ने, जिस दा साहिब नंगा भुखा होवै, तिस दा नफर कित्थों खज खावै। जिस दा मालक आप ही नंगा भुखा होवे, दुखी होवे, उस दा नौकर कित्थों रज के खा लवेगा। पर साडे साहिब दे घर सब कुछ है। दद्दा दाता एक है, सब को देवनहार, देंदे तोड़ ना आवई अगणत भरे भंडार। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आख्या, मानुक की टेक बृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। मनुख दी टेक व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मनुख साडे जीवन दे अंदर सुख नहीं लैके आ सकता। गुरु ने सानू सुखी करना है, गुरु दा आसरा सानू लेना पवेगा। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आखिया, जिस मानुख पै करों बेनती, सो अपने दुख भरिया। जेकर सुख चाहना तो पातशाह जी ने आख्या, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन भाओ सागर तरिया। आराधन कर अकाल पुरख दा, तिन सुख प्राप्त हो जाएगा। हुण धन श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने फरमाया, मानुक की टेक बृथी सब जान, देवन को एक है भगवान। एक अकाल पुरख ही सब जियां नूं देण जोगा है, दातां देण वाला है। जिस कै दिया रह अगाए, बाहुर ना तृष्णा लागे आए। जिस दे दित्तियां मनुख रज्जिया रहिंदा है, नानक भुखा तां रज्जै, जा गुण कै गुणी समाए। बाहो ना तृष्णा लागे आए, ते मुड़ उसनूं लालच आके दबाउंदा नहीं, लालच सताउंदा नहीं। फिर समझ आ जाती है कि हक दा खाना है। मेरे गुरु ने मैनू उपदेश दिता है कि हक पर आया नानका, उस सूअर उस गाए, गुरपीर हामा तां भरे, जा मुरदार न खाए। मारै राखै एको आप, मानुख कै किछ नाही हाथ। परमात्मा आप ही जीवां नूं मारदा है ते पालदा है, मानुख कै किछ नाही हाथ। मनुख दे वस कुछ नहीं, मनुख दे हथ वस कुछ नहीं है। पर असी मनुखों के कोल जाके झोलियां अड्डियां, कदी असी ढेसियां वाले दे कोल, कदी असी मटियां ते, कदी असी पीरां ते गए हैं। उन्हां तो थोड़ा सुख प्राप्त हो जाना सानू। सुख तां अकाल पुरख दे दर तो आके सानू मिलना है।
तिसका हुक्म बूझ सुख हुए, तिसका नाम रख कंठ परोए। उस मालिक दा हुक्म समझ के सुख हुंदा है। तिसका नाम रख कंठ परोए, उसका नाम हर वेले याद कर। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोई। अकाल पुरख परमात्मा नूं सदा सिमर। सिमरन दी बरकत नाल जिंदगी दे सफर विच कोई रुकावट नहीं पैंदी, कोई विघन नहीं लगदा। ते विघन लगदे किनू ने? जिन्हों अकाल पुरख परमात्मा दा नाम चेते भुल जाता है। पावन बचन गुरबानी विचों पढ़ते हाँ, कोट विघन तिस लागते जिस विसरै नाऊं। दुनिया दे तमाम दुख घेरा पा लैंदे ने उस मनुख नूं जिसनूं अकाल पुरख चेते भुल जाता है। सो गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने मनुख की टेक नूं व्यर्थ आखिया, जिन्हां दे कोल असीं जाके झोलियां अड़दे हां, जिन्हां दे कोलों असीं सुख प्राप्त करना चाहुंदे हां। मैं पहला जिक्र किया है, दुनियावी तौर ते एक स्टूडेंट नूं टीचर दा सहारा है, बुढ़े माँ बाप नूं अपने पुत दा सहारा है, मरीज नूं डॉक्टर दा सहारा है, एक छोटे बच्चे नूं अपने माँ बाप का सहारा है। जेकर ये सहारा नहीं लेंदे तो बात नहीं बनती, इस संसार का काम चलना औखा हो जाएगा। पर गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने उस टेक नूं वर्थ आखिया, जिन्हां दा आसरा, जिन्हां दी टेक अज असीं अपने जीवन के अंदर लै रहे हैं। सो अपने जीवन के अंदर सानू अकाल पुरख परमात्मा का आसरा लेना चाहिए है। जेकर सुख चाहुंदे आ ना तो इन्हां पावन बचनां नूं चेते रखिए। सर्व सुखां का दाता सतगुर, तां की शरणी पाईऐ, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाईऐ। हे भाई, गुरु सारे सुखां दा देण वाला है, उस गुरु दी शरण पैना चाहिए है। गुरु दा दर्शन कीतियां आत्मिक आनंद प्राप्त हुंदा है, हर एक दुख दूर हो जाता है। गुरु की शरण पै के परमात्मा की सिफत सलाह करनी चाहिए है। मनुखों दी सिफतां ना करिए, स्टेजां तो बह के अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करिए। जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश, सर्व सुखां का दाता सतगुर, तां की शरणी पाईऐ, दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाईऐ। दुनियावी आसरे छड्ड के अकाल पुरख की शरण सानू पैना चाहिए है। गुरु रामदास पातशाह जी के पावन बचन ने, अब हम चली ठाकुर पैहार, सारे दुनियावी आसरे छड्ड के अकाल पुरख का आसरा लईए, तां साडे जीवन के अंदर सुख आ सकता है। नहीं तो दुनिया के तमाम दुख सानू घेरा पाउणगे। इन्हां दुखों तो जेकर बचना है तो सानू अकाल पुरख की शरण पै जाना चाहिए है। अपने घरां दे विच गुरबाणी के असूलों नूं लागू करना चाहिए है।